Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna. Krishna दरवाजे बंद हो रही हैं। Hare Krishna दरवाजे बंद हो आगे। Hare Krishna दरवाजा बंद થઈ રહ્યા છે। Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadhar Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Ram Ram Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Krishna Krishna Ram Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna 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 Ram 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Krishna Krishna Hare Ram Ram Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Chaitanya Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram, Hare Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Hare, Ram Ram Hare Hare. Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare, Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Ram Ram Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Ram Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Ram Ram Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Ram Ram Hare Hare, Krishna Krishna Ram Ram Hare, Krishna Ram Ram Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Krishna Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Krishna Krishna, Ram Ram Hare Hare, Krishna Hare Hare, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Ram Ram Hare Hare, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna,
हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 श्री कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे What are they saying? Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram Ram Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Chaitanya. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Krishna Krishna, Ram Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare
Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Ram, 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. Ram Ram. Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Ram, Hare Krishna. Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Ram Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Guru Shishla Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज पुनः हमारे बीच श्रीमान बुद्ध प्रभु उपस्थित है। मुझे काफी व्यस्त रहते हैं, उनकी अलग अलग स्थानों पे भगवत कथाएं होती रहती है, सो उनका हमें संग मिलना थोड़ा सा दुर्लभ ही हो जाता है। लेकिन आज देववर्ष गुरु महाराज जी प्रभुपाद जी की कृपा से आज जी का हमें पुनः संग प्राप्त हो रहा है। आरंभ करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा क्लियर है प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी डिले हो क्या? अरे प्रभु सॉरी, यहाँ पे शायद कुछ नेटवर्क का इशू। आवाज ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है, आवाज ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नित्यानंद। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपाय सर्वानंद विधायिने जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। महाराज के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप जितने भी वैष्णव उपस्थित हैं, आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। जैसे कि माली प्रभु ने कहा कि फिलहाल एक कथा चल ही रही है, तो थोड़ा सा कल कृष्ण जन्म था तो गला बैठ गया है, आप लोग क्षमा करें। तो आज जो है हम लोग मतलब मैं छठे स्कंद के आरंभ में परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा है कि व्यक्ति जो पाप करता है वो अलग अलग प्रकार के नरकों को भोगता है, कि जैसे 5वें स्कंद के अंत में 28 प्रकार के, इसमें 21 मुख्य नरक हैं और 7 गौण नरक हैं, उनका वर्णन किया गया है। किस प्रकार का पापी व्यक्ति, किस प्रकार का पातकी व्यक्ति कौन से नरक में जाता है और किस किस तरह की यातनाओं को भोगता है, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने किया परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज ने छठे स्कंद के आरंभ में नरकों से बचने के लिए उपाय पूछा सुखदेव गोस्वामी से। तो सुखदेव गोस्वामी ने से 3 भागों में बांटते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार है, 3 अलग अलग प्रकार है जिसके आप अपने आप को नरकों से बचा सकते हैं, जिसको क्रमशः कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग कहा गया है। तो
इसी विषय पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे। परीक्षित महाराज ने सवाल पूछा, अधुनेह महाभाग यथैव नरका नर नानोग्र यातनान्यन्या तन्मे व्याख्या तुमर्हसि। आपने इससे पहले बहुत अलग अलग वर्णन किया है, लेकिन अधुना अब मैं ये चाहता हूं कि आप इसका वर्णन करें कि किस प्रकार से एक पापी व्यक्ति जिसके हाथों से गलती से पाप हो गया और उसको पश्चाताप है, तो ऐसे लोग इस उग्र यातना प्रदान करने वाले नरकों से कैसे बच सकते हैं। अतः आप क्या करो, व्याख्या तुमर्हसि, इसकी आप व्याख्या करो। अब मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि आप हमें बताइए, आप हमें समझाइए कैसे कि एकादा जो पापी व्यक्ति है, पापात्मा है, वो अपने पाप के फल स्वरूप नरक की यातना से बच सके। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री शुक उवाच, अलग अलग प्रकार के व्यक्ति पाप करता है, तो कुछ छोटे मोटे पाप होते हैं, कुछ बड़े बड़े पाप होते हैं। तो अलग अलग पापों के लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं। तो उसको अपने अपने पापों के अनुसार और उनकी मतलब जो छोटे पाप है उनके अनुसार छोटे प्रायश्चित, जो बड़े पाप है उनके अनुसार बड़े प्रायश्चित आप कर सकते हैं। दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम यथा भीषक चिकित्सेत रुजाम निदानवित। जिस प्रकार से एक चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, देखता है कि बीमारी कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, तो उसके अनुसार दवाई दी जाती है या उपाय किया जाता है एक चिकित्सक के द्वारा, एक डॉक्टर के द्वारा। इसी प्रकार से पापी आदमी को पहले ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का उसने पाप किया है और उस पाप के लिए किस प्रकार का क्षालन बताया गया है, किस प्रकार का प्रायश्चित बताया गया है। तो जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग ऐसे ग्रंथ है, मनुस्मृति आदि, जिसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति के हाथों यदि गलती से कोई पाप हो गया हो तो अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं। यदि वो ब्रह्म हत्यारा है, गौ हत्यारा है, बाल घाती है या स्त्री वध जिसने किया हो, अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं। कोई चोरी डकैती करता हो या कोई किसी को फंसाता हो या अवैध कार्य करता हो, ऐसे लोगों के लिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग उपाय बताए गए हैं जिसके माध्यम से वो अपने आप को बचा सकता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उसको क्या करना पड़ेगा, जल्द से जल्द उसको, मतलब मृत्यु से पहले, जब तक वो मर नहीं जाता उससे पहले उन प्रायश्चितों को करना पड़ेगा ताकि वो नरक जाने से बच सके। तस्मात् पुरैवाश्विह पाप निष्कृतौ यतेत मृत्योर अभिपद्यतात्मनः। उसको यतेत उसको प्रयत्न करना चाहिए जब तक वो विपदा में नहीं पड़ा, मतलब उसका शरीर नहीं छूटा है, अभी तक वो कार्यान्वित है, सशरीर है, ऐसे आत्मा को प्रयास करना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार का जो भी पाप किया है उसका वो तुरंत शीघ्र प्रायश्चित कर ले, जिससे कि वो नरक जाने से बच जाए। तो इस प्रकार से कर्म मार्ग के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने आग्रह किया कि आपको कर्म मार्ग के द्वारा एक कोई बड़ा अनिष्ट कार्य हो गया हो तो उसके क्षालन के लिए, उसके परिमार्जन के लिए एक विशिष्ट प्रकार का प्रायश्चित वो करे ताकि वो उस पाप से बच सके। तो इसे कहते हैं कर्म मार्ग। एक बड़ा ही सुंदर सरल उदाहरण दिया गया है जिसके माध्यम से हम इन तीनों मार्गों को समझ सकते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग को। तो दूध का उदाहरण दिया गया है। दूध कर्म मार्ग किसे कहते हैं, तो बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 लीटर दूध पी सकता है, तो उस व्यक्ति ने एक दिन दूध बहुत अच्छा लगा, मीठा लगा, मधुर लगा, इसलिए उसने लोभ में आके 1 लीटर की जगह 2-5 लीटर दूध पी लिया। तो इससे ये होगा कि उसका पेट खराब हो जाएगा, और जब पेट खराब हो जाएगा तो उसके ऊपर उसको उपाय करना पड़ेगा। फिर आगे दही वगैरह पी सकता है या पेट को शांत करने के लिए बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, उनको वो कर सकता है। तो जैसे आवश्यकता से अधिक दूध पी के पेट खराब कर लेना ये पातक किए जैसे है, और ऊपर से पेट को ठीक करने के लिए जो भी औषधोपचार हो जाएगा उसको आप प्रायश्चित कह सकते हैं।
तो इस प्रकार से कर्म मार्ग के बारे में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि यदि मान लीजिए आपके हाथों से कोई जो जानबूझकर गलतियां करता है तो सवई और ध्रुवम सवई प्रत्य नरकानुपैति, ऐसे लोग तो 100% नरक में जाएंगे जिन्होंने जानबूझकर पाप किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हाथों से परिस्थितिवश कालवश मजबूरन कोई पाप हो जाता है, कोई अपकार्य हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रायश्चित बताए गए हैं जिन प्रायश्चितों को करके वो अपने आप को नरकों से बचा सकता है। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने कर्म मार्ग के बारे में बताया तो परीक्षित महाराज कहे उठे, राजोवाच, हे सुखदेव गोस्वामी, हमने इस बात को देखा है कि दुष्ट श्रुताभ्याम यत् पापम जाननप्यात्मनो हितम करोति भूयः विवशो प्रायश्चित्तम अतो कथम। वे कहते हैं कि कभी कभी ऐसे देखा गया है कि व्यक्ति पापों का प्रायश्चित्त तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसे देखा गया है कि वो व्यक्ति पुनः वही पाप करता हुआ पाया गया है। जैसे जब मैं राजा था तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते थे कि किसी चोर को पकड़ के लाया जाता था, फिर वो पश्चाताप करता था कि नहीं, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। महाराज जी कहते थे उसके उस गलती के लिए मैं कुछ समय के लिए उसको कारावास प्रदान करता, लेकिन जैसे ही कारावास उसका संपन्न हो जाता, छूट जाता, वो जाते समय हाथ जोड़ के प्रार्थना करके चला जाता कि नहीं, आइंदा इस तरह का कार्य मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर 2-5 दिनों के बाद वो वही पाप करते हुए, मतलब चोरी करते हुए पकड़ा जाता था। तो महाराज जी ने कहा, मैंने ऐसे बहुत सारे दोषियों को, पापियों को देखा है, अपराधियों को देखा है कि जो बारंबार वही वही पाप कर रहे हैं और उसका दंड भोग रहे हैं, पाप कर रहे हैं फिर दंड भोग रहे हैं, पाप कर रहे हैं फिर दंड भोग रहे हैं। तो ऐसे प्रायश्चित्त से क्या लाभ, जिससे कि व्यक्ति की पाप करने की वृत्ति नहीं नष्ट हो रही। तो वे कहते हैं कि ऐसा जो दंड है या ऐसा जो क्षालन है, ऐसा जो प्रायश्चित है, उसको मैं हाथी के स्नान के बराबर मानता हूँ। संसार में परीक्षित महाराज कहते हैं, क्वचित निवर्तते भद्रान क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम मतो पार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। इसको मैं कुंजर शौचवत मानता हूँ। जैसे कोई हाथी घंटों घंटों तक पानी में जाता है, स्नान करता है, भगवान ने उसको नेचुरल ऐसी फवारे की व्यवस्था की है, अपनी सूंड में पानी भर भर के बहुत बढ़िया से घंटों घंटों वो स्नान करता है, शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो पानी के बाहर आ जाता है, पुनः अपने सारे समग्र शरीर के ऊपर वो सारी धूल मिट्टी उड़ा लेता है, सारी गंदगी उड़ा लेता है। तो इस तरह का स्नान किस काम का, यहाँ इससे क्या लाभ होगा कि व्यक्ति की शुद्धता सारी निकल जाएगी और पुनः वो गंदा हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी जो कर्म मार्ग के अवलंबन के बारे में बताया, तो परीक्षित महाराज उससे संतुष्ट नहीं हुए, उन्हें पुनः आग्रह किया कि नहीं, आप इससे कोई अच्छा पर्याय बताइए, अच्छा कोई मार्ग बताइए जिससे कि व्यक्ति के हाथों से पाप ही ना हो। तब सुखदेव गोस्वामी ने कर्म मार्ग के पश्चात ज्ञान मार्ग के बारे में बताया कि हाँ, ये बात तो सही है, व्यक्ति कर्म करता है और ऊपर से प्रायश्चित करता है, तो जैसे उसकी शुद्धि होनी चाहिए उस तरह की शुद्धि नहीं हो पाती। कर्मणा कर्म निरहारो न ह्यात्यंतिक इष्यते। एक कर्म के द्वारा कभी भी दूसरे कर्म को मूलतः नहीं काटा जाता। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हम 50% हमारे हाथों से कोई पाप हो गया हो तो कुछ 100% का पुण्य कर्म करेंगे और 50% पुण्य से 50% पाप कट हो जाएगा और 50% पुण्य शिल्लक रह जाएगा, बाकी रह जाएगा। लेकिन ये भ्रम है। इसी अजामिल उपाख्यान में आगे एक श्लोक आया है जहाँ पे कहा गया है कि ये न यावान यथा धर्मो अधर्मो वेह समेतान सह एव तत्फलम भुंक्ते तथा तावत अमुत्र। जिसके द्वारा ये न, जिसके द्वारा यावान, जितना धर्म अधर्म, जिसके द्वारा जितना धर्म अधर्म किया गया है, सह एव तत्फलम भुंक्ते, वही व्यक्ति उसको भोगता है। कोई व्यक्ति ना उससे उसके साथ शेयर करने आएगा या किसी अन्य पाप से या किसी अन्य कर्म से उस पाप को वो काट पाएगा। जितना धर्माधर्म है उसको दोनों भोगना पड़ता है। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, यदि पुण्यात्मा है तो ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर जाता है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा
जगन्य गुण प्रतिष्ठा अधः गच्छन्ति तामस, सात्विक ऊपर जाते हैं, तामसिक नीचे जाते हैं, राजसिक पुनः इस संसार में लौटते हैं। तो ऐसी उनकी गति होती है। किसी भी कर्म के द्वारा किसी भी कर्म के फल को नहीं काटा जा सकता। खुद सुखदेव गोस्वामी ने कर्म मार्ग को खंडित किया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि हाँ, कर्म मार्ग से श्रेष्ठ यदि कोई मार्ग है तो वह मार्ग है ज्ञान मार्ग। तो उसके बारे में कहते हुए वे कहते हैं कि तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन निमेन वा देहवाग बुद्धिज्म धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता क्षिपन्ति महदप्यागम वेणुगुल्ममिवानल। जिस प्रकार से कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ विद्वान होते हैं, वो तपस्या के द्वारा ब्रह्मचर्य न बड़े भयंकर व्रत वैकल्यों का पालन करते हुए बड़ा ही संयमित जीवन व्यापन करते हैं, यम नियमों के द्वारा अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, मन को शांत रखते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं। त्यागे न सत्य शौचाभ्याम, उनके जीवन में किसी भी चीज की प्रति आसक्ति नहीं, त्यागमय उनका जीवन है, सत्य में निष्ठ रहते हैं, शुचि रहते हैं, पवित्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं और बहुत ही सावधान रहते हैं, जिससे उनके हाथों से किसी भी तरह का पाप न हो पाए, किसी भी प्रकार का पाप न हो पाए। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण सुखदेव गोस्वामी ने दिया है, वे कहते हैं कि ये इसी प्रकार से है, कोई व्यक्ति कर्म मार्ग के ऊपर ज्ञान मार्ग का अवलंबन करते हुए अपने आप को पापों से जो दूर रखता है, तो उसके लिए उदाहरण दिया गया वेणु गुल्म मिवानला। जिस प्रकार से बांस बम्बू होते हैं उनके, और उनको काट दिया जाता है, उनमें आग लगा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमको आचार्य समझाते हैं कि जैसे ही वर्षा होती है, मतलब अनुकूल वातावरण आता है, जो कटे हुए बांस है उनमें से पुनः अंकुर बाहर निकलने लगते हैं। वो जितने भी बांस कटे हुए हैं, जले हुए हैं, वो पुनः अंकुरित हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा भले ही अपने आप को वो सुरक्षित रखने का प्रयास करता हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी, चूंकि वो मनुष्य है, उनमें दोष पाए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं और बहुत संभव है कि वह व्यक्ति योग भ्रष्ट हो जाए या पथ भ्रष्ट हो जाए, अपने मार्ग से विचलित हो जाए। जिस प्रकार से बारिश गिरने पर, अनुकूल वातावरण आने पर, वो सारे बम्बू के जो पेड़ होते हैं वो पुनः अंकुरित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। उस प्रकार से बहुत सारे चांसेस है कि व्यक्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा भी अपने आप को बचाते हुए संयमित व्यापन करता हो, जीवन व्यापन करता हो, लेकिन उसके हाथों से कुछ ना कुछ गलतियां अवश्य हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो दूध का उदाहरण हम लोग समझ रहे थे या सुन रहे थे, उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम समझते हैं कि ज्ञान मार्ग कैसे समझा जाए। तो ज्ञान मार्ग आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति दूध 1 लीटर दूध पी रहा हो, तो उसको पता है कि मैं 1 लीटर ही हजम कर पाऊंगा। तो वो कितना ही मधुर दूध हो, कितना भी मधुर गुणयुक्त वह दुग्ध हो, लेकिन वह व्यक्ति जितना वह पी सकता है वो उतना ही दूध पिएगा। तो इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। आवश्यकता से ज्यादा दूध नहीं पिएगा तो उसको पुनः औषध लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऊपर से। तो कर्म मार्ग ये है कि आवश्यकता से अधिक दूध पीना और ऊपर से दवाई लेना। लेकिन ज्ञान मार्ग ये है कि जितना है आवश्यक उतना ही दूध पीना है, ताकि दवाई लेने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क ये है कि सारी जिम्मेदारी उस योगी के हाथ में है, उस ज्ञानी के हाथ में है। सारी जवाबदारी जो है उसके कंधे पे है। तो उसको ही अपने आप को पापों से बचाना पड़ता है, उसको ही अपने आप अलग प्रकार की व्रत वैकल्य ज्ञान इत्यादि प्राप्त करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, यम नियमों के द्वारा संयमित जीवन व्यापन करना पड़ता है। तो इसको ज्ञान मार्ग कहा गया है। ये ज्ञान मार्ग है जिससे कि वह ज्ञानी व्यक्ति अपने आप को पापों से बचा के रखता है, ताकि उसको नरक ही नहीं जाना पड़े, वो स्थिर रह सके। लेकिन इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी 2 उदाहरण देते हैं, बड़े प्रसिद्ध उदाहरण है, आप सभी लोगों ने श्रवण किए होंगे। सौभरी ऋषि का उदाहरण है और विश्वामित्र जी का उदाहरण है कि विश्वामित्र जी जो है वो बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने लगभग 60,000 वर्षों तक तपस्या की, ताकि वो अपने आप को पाप से बचाए रखे, दूर रखे।
लेकिन आगे मेनका नाम की एक अप्सरा थी, उसका आगमन हो जाता है ऋषि के जीवन में। तो ऐसे वर्णन किया गया, केवल उनके पायजेब की ध्वनि सुनकर, उनके जो नूपुर है घुंघरू, उनकी ध्वनि को सुनकर ये योग भ्रष्ट हो जाते हैं और विश्वामित्र जी वो अप्सरा के साथ विहार करने लगते हैं। और विहार क्या करते हैं, वैसे महाभारत में वर्णन आता है, उनको एक पुत्री भी प्राप्त होती है जिसका नाम शकुंतला है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक भी अपने आप को बचाए रखने का प्रयास करे, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के हृदय से पाप करने की वासना तो नष्ट नहीं हुई, पाप करने की वृत्ति तो नष्ट नहीं हुई है। तो इसलिए कितनी भी सावधानी पूर्वक जीवन यापन करता रहे, कभी ना कभी उसके हाथों गलती हो जाएगी, और एक छोटी सी गलती जो है उसको इतने बड़े प्रयास से, इतने बड़े योग से भ्रष्ट कर सकती है। तो इसलिए परीक्षित महाराज जी ने कहा सुखदेव गोस्वामी से कि ये मार्ग भी थोड़ा रिस्की सा लगता है, और इससे सरल मार्ग बताइए और इससे पुष्ट मार्ग बताइए, ऐसा वाला बढ़िया सा मार्ग जहां से पथभ्रष्ट होने के चांसेस ना के बराबर हो। तो सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि राजा परीक्षित जो है वो सही मायने में भक्ति के अधिकारी हैं। तो इसलिए, और यहाँ पर ऐसे बताया जाता है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की परीक्षा भी कर रहे थे कि देखते हैं ये व्यक्ति कहाँ पर जाकर संतुष्ट होता है। तो परीक्षित महाराज ने कर्म मार्ग को ठुकरा दिया, ज्ञान मार्ग की भी उतनी सराहना नहीं की, और अंत में सुखदेव गोस्वामी को भक्ति मार्ग के बारे में बताना पड़ा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंती कार्त्स्नेन निहारामेव भास्कर। लेकिन इस संसार में केचित कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ गुट ऐसा है, कुछ ग्रुप ऐसा है भक्तों का, शुद्ध भक्तों का, केचित केवल या भक्त्या, वो क्या करते हैं, वो केवला भक्ति करते हैं। केवला भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति मतलब ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ऐसी भक्ति को शुद्ध भक्ति कहा गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कर्म का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, ज्ञान का भी लेश न हो, ऐसी भक्ति शुद्ध भक्ति। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ऐसी भक्ति जो ज्ञान और कर्म से ढकी हुई न हो, तो उसको केवल भक्ति कहते हैं, शुद्ध भक्ति कहते हैं। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः, इन लोगों ने क्या किया, ज्ञानियों ने, कर्मियों ने, ये अपने ऊपर जिम्मेदारी रख के कार्यान्वित रहे, इसलिए हो सकता है कि उनको जितना अपेक्षित था उतना यश न मिले, लेकिन जो भगवत भक्त होते हैं, भगवत प्रेमी होते हैं, इन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारी, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो ये भाव है। हाँ, प्रभु हे जगन्नाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जैसे कहते हैं, अपना सारा सब कुछ, पाप पुण्य कर्म अकर्म सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया गया, और कृष्ण केंद्रित जीवन व्यापन कर रहे हैं। भक्त की हर एक चेष्टा, हर एक चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए है। इसको कहते हैं वासुदेव परायण, उसका जीवन वासुदेवमय हो गया है, वो वासुदेव परायण हो गया है। वासुदेव परायण, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कृष्ण को ही अपना जीवन बना लिया है, ऐसे लोगों को वासुदेव परायण कहते हैं। तो ये इन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम लोग है, इससे केचित शब्द का इस्तेमाल किया है। केचित, क्वचित लोग ऐसे हैं। भगवत भक्ति बहुत सरल तो है, लेकिन भक्ति के गुणों में एक गुण बताया गया है सुदुर्लभ। ये भक्ति इतनी आसान होते हुए भी आसानी से मिलती नहीं है, इसलिए भक्ति का एक लक्षण बताया गया है सुदुर्लभ, बहुत कठिन है। बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुंच पाते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, हजारों में से एकाध व्यक्ति ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति, और ऐसे हजारों लाखों में से जो भक्ति करने का मतलब सिद्धि प्राप्त करने का जो प्रयास कर रहे हैं,
ऐसे हजारों लाखों में से एकाध दूसरा विरला व्यक्ति होता है जो मुझे जानने का प्रयास करता है। यतताम आपके सिद्धानम कश्चिन माम व्यक्ति, कश्चित मतलब बहुत ही कम लोग मुझे जानते हैं। और जो भक्ति की बात है वो भगवान को जानने के बाद आती है, अरे हाँ ये भगवान है, हमको इनकी भक्ति करनी चाहिए। तो आगे जो भक्त बनता है तो और भी दुर्लभ हो गया। जैसे हजारों लाखों में से एकाध दूसरा सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है, सिद्धि प्राप्त करने वाले हजारों लाखों में से एकाध दूसरा सिद्धि प्राप्त करता है, ऐसे सिद्धि प्राप्त किए हुए लाखों जीवों में से एकाध दूसरा ऐसा होता है जो भगवान को जानने का प्रयास करता है, प्रयास करने वाले लाखों हजारों में से एकाध दूसरा भगवान को जानता है, और भगवान को जानकर भी लाखों हजारों में से एकाध दूसरा ऐसा होता है जो भगवान की भक्ति में लग पाता है। इतनी दुर्लभ और इतनी कठिन है भक्ति प्राप्त करना। है तो बहुत सरल, लेकिन प्राप्त करना कठिन है। इसलिए केचित शब्द बताया, केचित केवल या भक्त्या, केवला भक्ति के द्वारा, ज्ञान कर्माद्यनावृतम से शुद्ध भक्ति के द्वारा, वासुदेव परायण, उन्होंने क्या किया है, अपने आप को भगवान के चरणों में न्योछावर कर दिया है। अब इनकी सारी जिम्मेदारी जो है वो भगवान के कांधे आ गई है, भगवान के ऊपर आ गई है। भगवान ही इनके अब गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत, भगवान गीता में कहते हैं इनका सब कुछ अब भगवान ही रह गए। तो जो दूध का उदाहरण हम लोग समझ रहे थे उसी को आगे और बढ़ाते हुए, तो मैं बार बार इस उदाहरण को बता रहा हूं ताकि ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आवश्यकता से अधिक दूध पीकर पेट खराब कर लेना और ऊपर से दही आदि पी के उसको ठीक करने का प्रयास करना, ये कर्म मार्ग है। एक कर्म के द्वारा दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करना मतलब कर्म मार्ग। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है इसमें ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, जितना जरूरत है उतना ही दूध पीता है, मतलब जितनी अपनी आवश्यकता है उतने ही चीजों को स्वीकार करता है और बाकी सारी चीजों से दूरी बनाए रखता है, प्रयास करता है कि मैं किसी भी तरह के पाप कर्मों में रत न हूं। इसको ज्ञान मार्ग कहा गया। जितना मैं 1 लीटर दूध पी सकता हूं तो बस इतना ही पीना है, उससे अधिक नहीं। लेकिन ये उदाहरण भक्ति मार्ग में कैसे लागू होता है, तो बताया गया है कि जैसे नवजात शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, ये जो छोटा बच्चा होता है वह भी दूध पीता है, लेकिन वो छोटा बच्चा ही कभी नहीं सोचता कि मैं आवश्यकता से ज्यादा दूध पी रहा हूँ, कम दूध पी रहा हूँ, कम दूध पीऊंगा तो क्या होगा, ज्यादा दूध पीऊंगा तो हो सकता है मेरा पेट खराब हो जाए। नवजात जो बालक होता है, छोटा सा बच्चा, वो इसके बारे में कतई नहीं सोचता। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उसके माता के ऊपर होती है। ये उसके माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चे को वो भूखा न रहे, इतना पर्याप्त मात्रा में उसको दूध पिलाए, इतना अधिक ही दूध न पिलाए कि वो बच्चा उसका पेट झरने लग जाए या पेट खराब हो जाए। तो उस नवजात बालक की सारी जिम्मेदारी उसकी माता की होती है, और जो भी उस बच्चे के साथ अच्छा बुरा होगा उसकी सारी जिम्मेदार उसकी माँ होती है। जैसे बच्चा अधिक दूध पी के उसका पेट खराब हो जाएगा तो कोई शौचालय वगैरह थोड़ी ना जाता रहेगा, वो तो सारा माता के ऊपर ही कार्यक्रम चलता रहेगा। तो माता को भोगना है, उसके जो परिणाम स्वरूप जो भी कुछ होगा उसकी सारी जिम्मेदार उसकी माँ होगी। तो उसी प्रकार से जो भगवत भक्त होते हैं वो पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं भगवान के चरणों में और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, भगवान के सेवा में जीवन यापन करते हैं और बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि अपने हाथों से भी जो जिसी भी प्रकार का कार्य, चाहे पुण्य कर्म हो पाप कर्म हो, सारी की सारी जवाबदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी वो भगवान के ऊपर सौंप देते हैं। तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है, फिर किसी भी प्रकार के बंधन में वो नहीं फंसते। किसी भी पाप कर्मों को उनको भोगना नहीं है, पुण्य कर्मों को उनको भोगना नहीं है। पुण्य कर्म भी भगवान कहते हैं गीता में कि मनुष्य को बांध देते हैं, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो इस प्रकार से सत्व गुण में भी यदि व्यक्ति हो तो वो भी बंधन में पड़ जाता है। इसलिए भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा कि निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, द्वंद्वों से मुक्त हो जा और विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाए। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये जो गुण है ये आपको बांधने वाले हैं, इसलिए अर्जुन निस्त्रैगुण्य भवा, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जा। तो इस प्रकार से भक्ति मार्ग के द्वारा हम अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रसंग में आगे अजामिल उपाख्यान आता है
तो भक्ति मार्ग में भी अलग अलग प्रकार की भक्ति, एक वाक्य में यदि बताया जाए तो भक्ति किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सभी इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगाना मतलब भक्ति है। लेकिन इन भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताई गई है स्वतः। इसी प्रसंग में यमराज जी कहते हैं कि एतावान एवं लोकेस्मिन पुंसाम धर्म परस्मतः, एतावान एवं इस लोक में पुंसाम धर्म परस्मृतः, छोटे मोटे तो बहुत धर्म है जिनका त्याग करने के लिए भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, जो गौण धर्म है शरीर से संबंधित है। लेकिन जो भागवत धर्म है आत्मा का धर्म है उसके बारे में कहा गया कि वो केवल इतना है, एतावान एवं लोकेस्मिन पुंसाम धर्म परस्मृतः भक्ति योगो भगवती, भक्ति के द्वारा वो भी भगवान के चरणों में, भक्ति योगो भगवती तन्नामम ग्रहण आदि भी, वो भगवान के चरणों में बस भक्ति करता रहे, उनके चरणों में जीवन व्यापित करके अपने जीवन को बिताता रहे, भक्तिमय जीवन व्यापन करता रहे, तो बस उसको किसी भी तरह के पाप पुण्यों से कोई चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के भी कर्म बंधन में वो नहीं पड़ेगा, नहीं फंसेगा। और ये जो भक्ति पर कार्यों को बताया गया जिसको हम भक्ति 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 कह रहे हैं, तो उसमें तन नामम ग्रहण आदि भी वहां पे कहा गया है। इन भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति यदि कोई है तो तन नामम ग्रहण, भगवान के नाम को ग्रहण करना, भगवान के नाम को लेना जो है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताई गई है इसी प्रसंग में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात तो सुखदेव गोस्वामी ने बड़ी अच्छी यहाँ पर कही है कि एकाध व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने पापों के क्षालन के लिए बहुत सारे प्रायश्चित किए हो, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि, बहुत सारे प्रायश्चित कर लिए हो, लेकिन यदि वो नारायण परांगमुख है, वो यदि भगवान का भक्त नहीं है, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण परांगमुख न निष्पुनन्ति राजेंद्र सुरा कुंभ मिवापगा। जिस प्रकार से किसी दारू की बोतल को यदि बंद करके गंगा नदी में, जमुना जी में, गोदावरी, सरस्वती, सभी पवित्र नदियों में वर्षों वर्षों तक डुबो के रखा जाए, तभी वो बोतल के भीतर की जो दारू है कभी गंगा जल में परिवर्तित नहीं हो सकती। उसी प्रकार से जो व्यक्ति बहुत सारे प्रायश्चित कर लेता है कर्म मार्ग के द्वारा जाके, लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, नारायण परांगमुख है, भगवान की ओर विमुख है, भगवान से, भगवान की ओर उसका मुख नहीं है, न सन्मुख है, तो ऐसे लोगों को ये सारे प्रायश्चित मिलकर भी शुद्ध नहीं कर पाते। और इसके ठीक विपरीत ऐसा कहा गया, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निर्वेशितम तद गुणरागियैरिह नते यमं पाशभृतस्य तद्भटान स्वप्नेपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताम। कोई व्यक्ति अपने समग्र जीवन काल में एक बार भी अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देता है, जैसे भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, इस कार्य को करता है, अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करता है, नमन करता है, या एक बार भी भगवान का नाम लेता है, तो ऐसे बताया गया है कि नते यमं पाशभृतस्य तद्भटान स्वप्ने भी पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताम। वो व्यक्ति नरक में जाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा स्वप्न भी नहीं देखता जिसके स्वप्न में यमदूत आए हो या उसको खींचने का प्रयास कर रहे हो, नरक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भक्ति मार्ग पर चल पड़ा है। कैसा भक्ति मार्ग? कहते हैं सगरी चीनो ही अयम लोके पंथः क्षेम अकुतो भय। ऐसा ये पंथ है जहाँ पे किसी भी प्रकार का भय नहीं है, किसी भी प्रकार की कर्म वासना नहीं है, किसी भी प्रकार के ज्ञान की जिम्मेदारी नहीं। सुशीला साधु यत्र नारायण परायण, ऐसे साधु संत जिन्होंने अपने जीवन को नारायण परायण किया है, अपने आप को अर्पित किया है, तो ऐसे संग में जब वो व्यक्ति आ जाता है तो फिर उसके पतित होने के, स्खलित होने के चांसेस न्यूनतम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। यदि ऐसे भक्तों से कुछ गलती होती भी रहे लेकिन फिर भी वो नाम में लगा रहे, तो भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेवस्य मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि स। वह साधु बना रहता है, और साधु महात्मा जो अगल बगल है वो अपने संग के द्वारा पुनः उसका उद्धार करते हैं। तो इसलिए हमको हठ पूर्वक साधु संतों की संगति में रहना चाहिए और भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितांशल गुरु महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान बुद्ध प्रभु का। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान बुद्ध प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में प्रभु जी से अनुरोध और प्रार्थना भी करते हैं कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। इसी प्रकार हमें भी इस भागवत का कुछ लेश मात्र जैसे कहे कि एक प्रकार से रस प्राप्त हो या रुचि प्राप्त हो या आसक्ति प्राप्त हो, इसी भाव और प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः ब्रह्मा जी के सानिध्य में हरे नाम जप और चपाटों के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत